नमस्ते और सुप्रभात। हार्टफुलनेस मास्टर क्लास के त्रिदिवसीय सत्र में हम आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। इस सत्र का प्रसारण हार्टफुलनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुणे के द्वारा आइनॉक्स लेजर के सभी भाइयों और बहनों के लिए किया जा रहा है। इस त्रिदिवसीय सत्र का संचालन डॉक्टर कमलेश जी पटेल करेंगे, जो हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक हैं। इन सत्रों में आपको ध्यान से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत किया जाएगा। तीनों सत्र पूरे होने के बाद आप स्वयं ध्यान करने में सक्षम हो जाएंगे। 160 से अधिक देशों में कई लोग हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति से जुड़े हुए हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ध्यान से जुड़े हुए आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए 10,000 से भी अधिक हार्टफुलनेस प्रशिक्षक आपकी सहायता के लिए देश और विदेशों के कई शहरों में उपलब्ध है। सत्र के दौरान यदि आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो वह आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान करने की हम अवश्य कोशिश करेंगे। Hello everybody. It is a human tendency to expect and desire for the best in whatever he or she does. Be it the best of education, the best of vacations, the best of careers, the best of family life, jobs, lifestyle. The list just goes on. We work hard towards achieving these things in the best possible form. But life is designed in such a way that we may not be able to get the best all the time. I believe that we have to learn to take this into our stride because a lot of things are beyond the control of human beings. It is sometimes humanly impossible to control what's happening around us. And when we as human beings face situations which desire our quest to be the best, and if we feel that it is obstructive, it's challenged, it's lost, we feel dejected. COVID outbreak is one such phase in our lives which has emerged like an obstruction in all our endeavors. It has influenced our lives in many ways, whether professionally, emotionally, financially, or in any other way we can look at. It's really changed the way we work. And this influence can lead to a significant amount of stress. The entire economy is impacted, and we are no different. In our businesses too, we have faced these challenges, and we have a lot of headwinds as of now. I cannot deny that there is no stress that I would have experienced personally in this COVID phase. There have been days when I felt perturbed. There have been days when I felt anxious, and there have been days when I felt that nothing is going right for me. But when challenges are thrown at you, you have to make a choice. The choice of continuing to take stress and keep getting influenced by all the negativity around you, or face challenges which are thrust on you and face them with a cool and a calm mind. Take tough decisions, take right decisions, stand by what is right and in the best interest of your people and your organization. But to be able to choose the option of facing the challenges, you need a lot of mental strength. And one can obtain mental strength from meditation. I feel, friends, meditation can help us channelize our energies and regulate our mind. It can help us park our worries on one side and look at in one positive direction. It provides us with peace, with calm, and the right thought process. Meditation helps, at least me, it helps me to restore and refuel my intellectual energies. It is very important to give timely breaks to our mind, and meditation is a wonderful way of giving these breaks to our mind. Elements like anger, fear, stress are difficult to keep off and sometimes become unavoidable. But with meditation, and especially what I'm practicing, for example, heartfulness meditation, you can surely keep these influences at bay. To me, the biggest benefit of heartfulness meditation is that allows you to introspect.
and to look at what is right and what is wrong. Allows you to think about turning your mistakes into opportunities. I have personally felt and experienced a lot of benefits from meditation, and I would like to take this opportunity to tell everybody that one should do heartfulness meditation for whatever amount of time you can. It is one beginning which needs to be made, and why not make the beginning today? Welcome, Team Inox. I'm excited to welcome you to this 3-day session of Heartfulness. My name is Harshal Javle. I'm the Regional Director of Heartfulness, a global organization spread in 160 countries. We are headquartered in Kana Shantivanam near Hyderabad. And I'm excited to see all the employees of Inox spread across the entire country participating in these sessions. What really blew me off was that 15% of you are already practicing heartfulness meditation. So that really delighted me. But what is more important is that the management of Inox is visionary enough to ensure that the rest of the folks are also exposed to something like this, which can help them in bringing balance to their life, promoting their mental health. And I hope these 3 days will be enriching for you. I wish you all the best and good luck. इससे पहले कि हम आज का सत्र शुरू करें, आप किसी शांत जगह पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। नमस्ते, आप सभी का हार्टफुलनेस सेशन का फर्स्ट मास्टर क्लास में स्वागत है। ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताना, खास करके कि हम ध्यान क्यों करते हैं, मैं उसके पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ध्यान का महत्व क्या है, उससे फ़ायदा क्या होता है, हम ध्यान करने से कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, सबको इसके बारे में ज्ञात है। प्रॉब्लम वहाँ आती है, समस्या वहाँ आती है कि ध्यान कैसे किया जाए, किस चीज़ पे किया जाए, कब तक किया जाए। ध्यान में जब विचार आते हैं उसका सामना कैसे करें, जो समाधि की बात बताई गई है उसको सरलता से हम उसको प्राप्त कैसे करें। तो आइए मैं आप सभी को ध्यान का अनुभव करवाना चाहता हूँ। ध्यान हम सब करते हैं, बिजनेसमैन वो भी ध्यान करते हैं, ध्यान किसी और चीज़ पे होता है, लेकिन टीनेजर्स इन कॉलेज वो भी ध्यान करते हैं, जैसे जैसे अपना मन का रस। माँ भी ध्यान करती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बार बार सोचती रहती है बच्चे के बारे में, वो जब तक स्कूल से घर नहीं लौटे, तो भी तो एक तरह का ध्यान तो है। तो योगिक साधना में ध्यान हम कुछ उम्दा चीज़ पे करते हैं, खास करके हमको कहा गया है कि ईश्वर पे ध्यान करो। लेकिन ये जब बात आती है ईश्वर पे ध्यान करो, तो उन पे कैसे ध्यान कर सकते हैं जिनको जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, उनका ख्याल कैसे करें। कहा गया है कि यदि मुझे पता ही है कि ईश्वर पे ऐसे ध्यान करना है और यही ईश्वर है, तो ध्यान करने की कुछ ज़रूरत है क्या? नहीं होती है। तो हम शुरुआत करते हैं एक ख्याल से कि हृदय में वो ईश्वरीय जो प्रकाश है वो मौजूद है। उस प्रकाश को देखने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ सोचते हैं कि वो मौजूद है बस, और हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान, हमारा मन उनकी तरफ खींच रहा है। आपको मैं साइंटिफिक रूप से प्राणायाम
प्राणाहुति द्वारा इसका अनुभव कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि ध्यान प्राणाहुति से होता है और जो ध्यान प्राणाहुति के बगैर होता है उसका फर्क क्या है। आपने कभी ना कभी तो ध्यान किया होगा प्राणाहुति के बिना, लेकिन जब मैं आपको ध्यान कराऊंगा प्राणाहुति के साथ, तब आपको कैसा अनुभव होता है उसको आप नोट कीजिए, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। उस ध्यान को करने से पहले मैं आपको एक रिलैक्सेशन की मेथड सिखाऊंगा जिसको आप कभी भी कर सकते हैं खुद पे, और आपका मन चाहे तो किसी और को भी आप रिलैक्स करवा सकते हैं। खास करके जिसको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो वही चीज़ करना है जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो आप यदि तैयार है सब, तो हम शुरू करते हैं कैसे रिलैक्सेशन किया जाता है। शिथिलीकरण, अपना शिथिलीकरण करना ज़रूरी है। यदि आप ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो या शिथिल हो तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जो तनाव महसूस करते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा खास करके 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा अटेंशन फिजिकल रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण में वो टाइम दिया जाए। जी, उनके जो स्टेप्स है मैं आपको बताऊंगा। आराम से बैठ जाएं और बहुत ही हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। हम पैरों की अंगुलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की अंगुलियों को घुमाएं। अब महसूस करें कि ढीली और तनाव मुक्त वो हो रही है। एक तरह की शक्ति, ऊर्जा धरती से ऊपर आ रही है, हमारे पैरों में एंटर हो रही है। पंजों से ऊपर घुटनों की ओर एवं पैरों को आराम पहुंचा रही है। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा घुटनों से ऊपर की ओर जा रही है और उन्हें आराम मग्न कर रही है। अब अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। सोचें कि वहां भी ऊर्जा जा रही है। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। वहां भी सोचिए कि वो धरती से आई हुई ऊर्जा हमें एक तरह का शिथिलता पर हमको शिथिल बनाने जा रही है। अपनी छाती और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे हल्के होकर सुखद एहसास में विलीन हो रहे हैं। अपनी ऊपरी बाहों को ढीला छोड़ दें। आपकी कोहनी से नीचे हथेली तक की सारी मांसपेशियां, अंगुलियों को सभी आराम के एहसास में डूबी हुई है। गर्दन को भी ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले जाएं।
अपना फेस, जबड़ा, मुंह, नाक, आँख, कान, सब माथा पे भी, सिर के शिखर तक सब ढीला छोड़ दें। सोचे कि धरती माता से आई हुई ऊर्जा हमें रिलैक्स कर रही है। महसूस करें कि अब पूरा शरीर हल्का होकर आराम के सुखद एहसास में डूबा हुआ है। अब अपना ध्यान हृदय की ओर ले जाएं। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान वहां टिकाएं। महसूस करें कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है। निश्चल और शांत भाव से बैठे रहें और धीरे से स्वयं में रम जाएं। जितनी देर आपका दिल चाहे इस अवस्था में रुके रहिए। जब ये रिलैक्सेशन हो गए, हम कर दिया, तो उसके बाद हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा नोट कीजिएगा कि हमें ये रिलैक्सेशन के बाद क्या महसूस हुआ। क्या आपके बाजू में जब किताब हो या अपनी नोट पैड पे अपने रिलैक्सेशन का अनुभव तुरंत लिख देना अच्छा रहेगा। अब हम ध्यान करेंगे। इसके बाद ध्यान में वही पोजीशन में हमें बैठना है, वही आसन में बैठना है जो हमें सुख दे, उससे कुछ तनाव न हो, स्थिर हो, सुख दे, ऐसा आसन में बैठना है। कई लोग लोटस पोस्चर बोलते हैं, जैसे अपने पलाठी बोलते हैं, इस तरह बैठ सकते हैं, या कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, या सोफा में भी बैठ सकते हैं। हमें पीठ पे लेट के ध्यान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि लेटे लेटे हम ध्यान करेंगे तो नींद आ सकती है, तो उसको ध्यान नहीं कहेंगे। बाद में उसको बोलेंगे कि वो तो नींद की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो चलो हम सब ध्यान में लग जाए। अब हल्के से आंख बंद कीजिएगा। सोचिए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और हमारे ध्यान को उनकी तरफ खींच रहा है, और मुझ में वो प्राणाहुति आ रही है। यदि ख्याल आए तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं ध्यान में बैठा हूं। विचारों की तरफ मन न लगाएं। सिर्फ अपने को याद करवाना है कि मैं ध्यान में बैठा हूं। तो इस ध्यान में मैं आप सबको ये प्राणाहुति क्या है उसका अनुभव जरूर करवाऊंगा। सोचिए कि वो ईश्वरीय धारा मेरे हृदय में एक सहज रूप से आ रही है।
बस कीजिएगा। ध्यान के बाद जरूरी है कि हम अपने अनुभव लिखते हैं। मेरी क्या हालत थी ध्यान की शुरुआत के पहले, और ध्यान करने के बाद मेरी क्या हालत है, उसमें क्या फर्क है, कैसा अनुभव हुआ, क्या कुछ आइडियाज ऐसे ख्याल आए जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगी में, उसको अपनाना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसको निकालना भी है, उस ख्यालों को नोट करना है। हमारी हालत कैसी एक सूक्ष्म हो जाती है, शांतिमय हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। यदि वो महसूस किया तो वो भी हम लिख सकते हैं। हर दिन हम लिखते हैं तो एक तरह की हमारी प्रगति की एक चार्ट बन जाता है। यदि हम कुछ अनुभव करते हैं ध्यान के दरमियान, अब 2 दिन के बाद सोचेंगे कि हमको कैसा अनुभव था, अब भूल जाएंगे, अब कुछ बता नहीं पाएंगे। इतना ही याद रहेगा कि हाँ वो अच्छा था, लेकिन डिटेल में जब कोई पूछे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो अपने लिए अपनी प्रगति कैसे हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए हमें लिखना ज़रूरी है। यदि वो भी आप नहीं लिख पाते तो कोई हर्ज नहीं है उससे। हम नहीं लिख पाते तो ऐसा सोचना नहीं कि हम ध्यान नहीं करेंगे। ध्यान करना एक ज़रूरी है, चाहे आप लिख सके या ना लिख सके। अब जब हम ध्यान करना अब जान गए तो ज़रूरी है कि हम एक टाइम बना लें, एक समय बना लें। जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं वो आसान बन जाती है, एक सहज हो जाती है। जैसे गीता में बताया है कि कर्म, कई तरह के कर्म होते हैं। कर्म होता है, अकर्म भी होता है और विकर्म भी होता है। सब लोग कर्म करने से मजबूर तो है ही, लेकिन वो कर्म के साथ जब प्रेम लग जाता है तो वो खास रूप का कर्म हो जाता है, जिसको विशिष्ट कर्म कहते हैं या विकर्म कहते हैं। और ये काम करते करते अपनी हालत ऐसी बन जाती है कि हमें उसका पता ही नहीं चले। जब काम करते हैं प्रेम रूप में हम डूब जाते हैं, काम करते हैं तो काम करने का असर नहीं लगता है अपन को। जैसे कि माँ अपने बच्चे को दूध देने के लिए जब उठ जाती है 2 बजे या 3 बजे, क्योंकि बच्चा रोता है, तो प्रेम से उसको दूध भी देती है। यदि वही चीज पिताजी से बताइए क्या होगा? उनके लिए वो नॉर्मल नहीं है। वो दूध की बोतल लाएगा, गर्म करेगा, बाद में उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करेगा, बाद में लिखेगा कि वो आज मैंने रात को अपने बेटे को दूध पिलाया, और महीनों तक वो याद करेगा, सालों तक याद करेगा कि मैंने उठ के मेरे बेटे को दिया। माँ कभी याद करेगी क्या? नहीं करेगी। कर्म की असर पड़ती है, विशिष्ट कर्म की भी असर पड़ती है, अकर्म की कोई असर नहीं पड़ती। इसलिए हम संस्कार रहित हो जाते हैं, उसकी असर नहीं पड़ती है। उसके लिए हमें किसी को याद करवाना नहीं पड़ता है कि मैंने देखो आपके लिए ये किया था। इसी तरह
जब हम ध्यान करते हैं शुरू में, उसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। धीरे 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 जैसे अपन को अनुभव होते जाते हैं, वो एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव और उम्दा अनुभव आते ही रहेंगे। तो उनके साथ हम जब चलते रहते हैं अपनी साधना, तो कई बार हम मेडिटेशन चूक जाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो पूरे दिन अपन को अफसोस होता है कि आज मेरा ध्यान छूट गया। तो ऐसा मौका मत दे कि हम अनुभव से विचलित हो जाए। हम तो चाहते हैं कि हर दिन अलग अनुभव हो और एक अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर हो। लेकिन ये अनुभव क्या सिखाता है? यदि ध्यान में हमें कभी भी अनुभव नहीं होता, तो कैसा ध्यान कि जिसमें अनुभव न हो? प्राणाहुति की वजह से हमें जरूर अनुभव होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जैसे हम परेशान हो जाते, कितने अनुभव करेंगे? मालिक को प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अभी बहुत हो गया, अभी आगे क्या? तो वही हमको रास्ता दिखाते हैं कि अभी ठीक है, चलो आपका अनुभव की लिमिट हो चुकी है, अभी कुछ बनने का है। ऐसा बने कि जिससे हमको अनुभव की जरूरत न हो। एकमयता, यदि पानी का बूंद समुद्र में समा जाए तो वो समुद्र हो जाता है। पानी के बूंद को अनुभव की जरूरत नहीं होती है, वो समुद्र हो चुका। और जो डूब गया वो क्या कहेगा? अनुभव के बारे में कुछ बताएगा? नहीं। तो ध्यान में हमें डूब जाना है, समाधिवस्थ हो जाना है और दुनिया में फिर काम करने के लिए फिर से मजबूत होके आगे काम बढ़ाना है। ऐसी हम वही चीज बताना चाहते हैं कि ध्यान के बाद जो अनुभव होते हैं उसको सेटल होने दीजिए अपने हृदय में, और जब वो हालत अपने पूरे शरीर में फैल जाए, वो हालत से हमें बाद में दुनिया में काम करने चले जाना है। ऑफिस में काम करना है या बिजनेस में काम करना है या घर पे हमारा जो जिम्मेदारी है वो संभालना है। पर जो भी हो, जो भी हमें कर्म करना है वो ये हालत के साथ करना है। तो ये जरूरी है कि ध्यान के बाद हम वो हालत की पहचान कर लें, और वही हालत, एक हालत के बाद दूसरी हालत के बाद हम कुछ बनने लगते हैं। और बाद में फाइनल में क्या होता है कि ऐसा अनुभव हो जाते हैं कि हम कितना बनेंगे, जैसे कितने अनुभव हुए हम कितना बनेंगे। अब दिल वही चाहता है कि कुछ न बने तो ठीक है, सिर्फ ईश्वर ही हो। जब मैं न मैं रहूं, सिर्फ ईश्वर ही रहे, वही ध्यान की कल्मिनेशन कहता है। जब ध्यान ही नहीं रहा, उसके आगे बढ़ जाते हैं हम, कुछ करने का नहीं होता है। जब कुछ करने का नहीं होता है, कुछ पाने का नहीं होता है, तो हमको लगता है कि बस अभी हम ध्यान की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। लेकिन यदि हमें पक्का गुरु मिल गया, वो हमको याद कराएंगे कि भाई ध्यान में कोई अंतिम सीमा नहीं आती, जो असीम है उसकी अंतिम सीमा कैसे? तो चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट मास्टर क्लास ध्यान पे। मैं आपको कल कुछ और बताऊंगा जो अपने ध्यान को और स्ट्रांग बनाए और मजबूत बनाए।
वो प्रक्रिया कल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लीनिंग, हमारे हिंदी में कहेंगे उनको सफाई करना है। किस चीज़ की सफाई करनी है वो मैं कल आपको बताऊंगा, वो कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। सो थैंक यू एंड नमस्कार। नमस्ते। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं। एक प्रश्न है, we felt relaxed and good, however tried hard not to think anything and going into deepness, however at some moments I lost little bit of concentration. Relax, great experience but not for too long. बहुत अच्छा है कि आपको रिलैक्स लगा और हल्का भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। एक हमें इस ध्यान में ध्यान ये रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, हमें अपने आप को छोड़ देना है। कहाँ पर? अपने हृदय में। और जब हम अपने आप को हृदय में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर किसी चीज़ की, फोर्स की, कंसंट्रेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आप जब भी ध्यान करेंगे हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति से, तो आप अपने आप माइंड का जो फोर्स है या थॉट का फोर्स है उसे ज़रा भी इस्तेमाल ना करें। अगर विचार आते हैं तो उसे बहुत जेंटली इग्नोर कर दें। बहुत हल्के से, बहुत प्रेम से आप उनको अपने अपने से दूर कर सकते हैं। तो कृपया करके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की आप कोशिश ना करें। नमस्ते। एक क्वेश्चन है, रिलैक्स और बॉडी एंड माइंड ऑल्सो सॉल्व इंसोमेनिया। सो इसमें एक्चुअली ये पूछा गया कि नींद नहीं आती है या रात को जैसे हम बोलते हैं कि डीप स्लीप होनी चाहिए, अगर वैसे नहीं आती, तो इसके लिए अगर हमारे दिमाग में बहुत विचार रहे, हम लोग हमेशा स्ट्रेस में रहे, कुछ ना कुछ चिंता करते रहे, तो ज़रूर आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थॉट्स रनिंग इन योर माइंड। तो हमको ये ध्यान में हमारे हार्ट को और हमारे दिमाग को, जैसे ब्रेन को बैलेंस करना है, ताकि हम लोग जो जब भी ये मेडिटेशन करते हैं, जितने भी जो थॉट्स आते हैं धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे। इसका टेक्निक मतलब ध्यान करते हुए ये जो थॉट्स आते हैं उसको कम कैसे करेंगे, इसका हम लोग आपको कल एक सेशन जिसको हम क्लीनिंग का बोलते हैं, इसमें आपको टेक्निक सिखाएंगे। इसी प्रश्न के कंटिन्यूएशन में मैं और भी कुछ जोड़ना चाहूँगी कि नींद एक बहुत ही प्राकृतिक अवस्था है, बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक स्थिति है। तो जब हम ध्यान करते हैं हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति से, तो हम काफ़ी स्वाभाविक स्थिति में आने लगते हैं। हमारा जो तनाव है वो निकलने लगता है और हम एक बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में आते हैं। जब ऐसी रिलैक्स कंडीशन हमारी हर वक्त बनने लगती है, तब धीरे धीरे अगर हमें नींद ना आने की समस्या है तो वो भी हल्के हल्के चले जाती है, क्योंकि एक बहुत ही स्वाभाविक स्थिति में हम जाते हैं। जैसे स्वाभाविक तरीके से सुबह उठना और रात को किसी स्वाभाविक तरीके से ही हमें नींद आना। तो अगर आप ये ध्यान के तीनों सत्र करेंगे तो आपका ये जो भी अगर कोई इस समस्या से ग्रस्त है तो वो धीरे धीरे उनकी कम हो जाएगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। एक और प्रश्न है, ड्यूरिंग विच टाइम इज परफेक्ट फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए कौन सा वक्त सही है? तो हम ये रेकमेंड करना चाहेंगे कि सुबह का जो वक्त है वो ध्यान करने के लिए सबसे आइडियल टाइम कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत शांति रहती है, पीसफुलनेस रहता है। और ऐसी स्थिति में जब हम अपने आंतरिक शांति से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह ध्यान ना कर पाए तो जो भी वक्त आपको सही लगता है, कोई एक
वक्त आप अपने लिए तय कर ले, एक कोई जगह तय कर ले और उसी वक्त अगर आप ध्यान करेंगे हर रोज उसी जगह, तो वो बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक और असरदार होगा। एक प्रश्न है कि ड्यूरिंग मेडिटेशन लॉट ऑफ क्वेश्चंस गो इन ऑन इन माइंड व्हाट टू डू। देखिए, जैसे भी हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आना तुरंत शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, जैसे हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं तो हमको पता नहीं कि बाजू वाला इंसान कौन है, या हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं जिनको हम पहचानते नहीं है, अनइनवाइटेड गेस्ट बोलो, या हम जैसे बाहर घूमते हैं तो हमको पता भी नहीं रहता कोई आदमी है, तो जैसे ऐसे ही अपने को जो थॉट्स आते हैं उनको ट्रीट करना है, उनकी तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। अगर ध्यान करते हुए अगर आपके दिमाग में विचार आना शुरू होते हैं तो वो चेन कंटिन्यू चलती रहती है, हमको उसे ब्रेक करना है। तो फिर से जैसे अगर थॉट में आते हैं तो आपको खुद को एक सजेशन देना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और अपने को फिर से अपने हृदय की तरफ फोकस करना है। दूसरा और एक प्रश्न है कि ध्यान करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन है ये बहुत सिंपल पद्धति है, इसमें ऐसा कुछ फोर्स या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आपको जब भी समय हो, जब भी आपको सूट करता हो, जब भी आपको टाइम मिलता हो, जैसे सुबह हम प्रीफर करते हैं, बट इसके लिए ऐसा कुछ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऐसा कुछ जरूर नहीं है। आप सुबह उठ के ध्यान कर सकते हो। केवल आप ये सोचिए कि आपको जो भी आप जहाँ बैठोगे वो आपके डिस्ट्रक्शंस वहाँ पे होने नहीं चाहिए, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि आप चेयर पे बैठ सकते हैं या नीचे बैठ सकते हैं या बेड पे बैठ सकते हैं, आप वहाँ बैठ के ही ध्यान कर सकते हो। इसके लिए कुछ खास करके ऐसा ध्यान रखना नहीं है। एक और प्रश्न आया है, कैन वी डायरेक्टली गो फॉर मेडिटेशन और सम आसनास इज देयर। जैसे कि अभी हमने उत्तर सुना, तो आपको बहुत किसी फोर्सफुल चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सुखासन हम जिसे कहते हैं, आराम से बैठिए। आपको अगर जमीन पर आप बैठ सकते हैं बैठिए, आपको सोफे पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, या आपको हमारे बेडरूम में सबके बेडरूम में बैठना है, आराम से आप बैठ सकते हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सोने की स्थिति में, यानी जैसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल नहीं, हमें वर्टिकल बैठना है। आप पीठ को सपोर्ट लेके आराम से बैठ सकते हैं। तो जो भी आपको आपका हृदय कहे और जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार का आसन आप इसके लिए बैठ सकते हैं। एक और प्रश्न है, हाउ कैन वी स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है, हमारी हैबिट है, हमारे माइंड की यानी मनस की। ये एक ऐसी हैबिट है कि जिसे कंटिन्यूस, जैसे कहते हैं लूप में हम जाते हैं। तो कल का सत्र अगर आप हम विनती करेंगे कि आप सब लोग अटेंड करिए, तो ये जो भी हमारी आदतें हैं, फिर चाहे वो हमारे शरीर की हो या हमारे मन की, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ये नकारात्मक आदतें जो है ये जो हमें तकलीफ पहुंचाती है, तो कल का सेशन अगर आप अटेंड करेंगे और उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो ये जो ओवर थिंकिंग की हैबिट है हमारी, ये चेंज होने लगे। यानी किसी एक व्यक्ति, सिचुएशन या किसी एक सवाल या विचार के हम घेरे में अटकने से बच जाएंगे। तो कल का सत्र आप जरूर अटेंड करिए। एक और प्रश्न है, मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैं जब ध्यान में था तब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो सारा ध्यान नींद में ना चला जाए। देखिए, अभी हार्टफुलनेस मेडिटेशन की एक बहुत ही खास बात है कि हम जब ध्यान करते हैं हम अपने ही हृदय के गहराई में जाते हैं। जब हम अपनी उच्च चेतना को महसूस करने लगते हैं, तो कई बार जो है हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही है, या जैसे झपकी कहते हैं, तो ऐसे हो रहा है। तो आप इस बात का मतलब आई एम अश्योर यू कि ये नींद नहीं होती है। हमारा ध्यान हुआ है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे। तो जब हम ध्यान से उठते हैं, आंखें खुलते हैं, अगर हमें पीसफुल लग रहा है, शांत लग रहा है, हल्का लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नींद नहीं थी, वो ध्यान की गहरी अवस्था थी। तो एब्जॉर्प्शन की डिफरेंट कंडीशंस होती है।
तो आप इसे बहुत ही स्वाभाविक तरीके से लें। हम जितने लोग हैं इस ध्यान को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। किसी को शायद विचार महसूस हो, किसी को नींद की झपकी जैसा लगे। तो ये आपका अपना अनुभव है और ये एब्जॉर्प्शन की कंडीशन है। तो आप डायरी लिख सकते हैं और आगे के ध्यान के लिए उत्सुक रह सकते हैं। इसमें एक और लिखा हुआ है, while meditation may we play a soft music so that we don't feel sleepy। प्रश्न ये है कि क्या मैं कोई हल्का सा गाना या म्यूजिक सुन सकती हूँ। तो ये ध्यान में हम क्या करने की कोशिश करें, हम अपने अंतरतम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम अपने अंतरतम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें जो बाहरी नॉइज है या बाहरी किसी चीज का हमें सहारा लेने की जरूरत नहीं। हम अपने मनस को बहुत स्वाभाविक रीति से अपने हृदय पे आके छोड़ दे रहे हैं। तो जिस तरह का प्रिस्क्राइब है ये मेडिटेशन, अगर आप उसी तरह से करें तो उसको आपको और भी इसके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी इन मेडिटेशन। सो जैसे कि प्रश्न ऐसा है कि ये रियलिटी में मेडिटेशन क्या है और हम लोग इमेजिन करते हैं वो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, हमको पता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ध्यान करना चाहिए, इससे ये होता है, उससे ये होता है। तो ध्यान ये जो है बोलने की चीज़ नहीं है या सुनने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव करने की चीज़ है। तो आप जब आंखें बंद करके अपने हृदय से जब कनेक्ट करोगे तो आपको जो अनुभव आएगा वो एक्चुअली रियलिटी रहेगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस धीरे धीरे करते जाओगे या डेली मेडिटेशन करते जाओगे, आपके अनुभव और बेहतरीन होते जाएंगे। तो इसमें डिफरेंशिएट करना मतलब बेसिकली इमेजिनेशन और रियलिटी में ये है कि आप इसका खुद अनुभव करें और आप में जो बदलाव होता है उसको अनुभव करें, उसको देखें, तो आपको मेडिटेशन का असली फायदा होगा। इसमें मैं और कुछ जोड़ना चाहूंगी कि रियलिटी वही है जब जैसे कि सर ने बताया कि जब आप ध्यान करने लगेंगे तो आपका हृदय आपको खुद ही इस बात का सिग्नल देगा कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। आप खुद ही बहुत स्वाभाविक तरीके से इसे समझ पाएंगे। एक प्रश्न आया है, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। जो जगह जहाँ पर आपको ऐसे लगे कि बाहर की आवाज़ कम है, जहाँ पर शांति है, ऐसे जगह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जगह कोई भी हो सकती है। तो ये आपको तय करना है कि आपको कहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ टू डील विथ थॉट्स। ओके, मतलब विचारों से कैसे पेश किया जाए जब हम लोग ध्यान करते हैं। तो मैंने इसका पहले भी बताया था कि इनको अनइनवाइटेड गेस्ट करके ट्रीट करना है। जिनको हम पहचानते ही नहीं, जिनको जानते ही नहीं, उनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। जिस व्यक्ति को हम इस प्रकार ट्रीट करते हैं कि हमको भी पता ही नहीं इंसान के बारे में या व्यक्ति के बारे में, तो हम उसके तरफ दुर्लक्ष करते हैं। तो ये थॉट्स हमारे जब मेडिटेशन के दरमियान आते हैं, इनको भी हमें दुर्लक्ष करना है, उन पे जाके फोकस नहीं करना है। अगर ध्यान करते हुए विचार भी अगर आते हैं तो उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए और फिर से अपने को एक थॉट दीजिए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और अपने हृदय से फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। ध्यान करते हुए विचार तो आते रहेंगे, लेकिन उसी पे अपन को मास्टरी करनी है ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके और हम हमारे अंदर जो अननेसेसरी स्ट्रेस हमने जो बनाए रखा है उसको निकाल सके। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू सिट, पोस्चर। ठीक है, ये ध्यान करने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक पोस्चर नहीं है। आपको जहाँ भी लगता है नीचे बैठ के आप ध्यान कर सकते हो तो बैठ कीजिए, चेयर पे बैठ के ध्यान कर सकते हो तो कीजिए। इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक आसन नहीं है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस आसन में आप बैठ सकते हो। काफी कुछ सवाल थे एंड वी होप कि हमने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। ये ध्यान जब आप करेंगे हर रोज, तब आप अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे बदलाव जिनकी कल्पना भी आपने नहीं की थी, और ये जो है ये बहुत स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से होने लगता है। तो आप ये तीनों सेशन जरूर अटेंड करें
और जो हमारा यूट्यूब का चैनल है आप इसे ज़रूर लाइक करें, ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स की हम राह देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कल हम इसी समय मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे और आप सब लोग ज़रूर आइए। आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। हम सबकी ओर से बहुत आभार और आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।